Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the poem The Voice of Rain, written by Walt Whitman, who was a very well-known poet, essayist and journalist of United States of America. He had written many poems. He was born on 31st May 1819 at West Hills, New York in USA and was died on 26th March 1892, Camden, New Jersey in USA, United States of America. He had written many poems. Before his writing, as in his early life, he was struggling to get the education. Somehow he got the education, formal school education, till 11 years old, when he was 11 years old. And after that, he has worked as an office boy of two lawyers. And then apprentice of Patriot newspaper and began to editing newspapers. He had worked as a journalist, and at that very time, he had got the education in various colleges of United States of America and worked as a teacher too. But he realizes that he was not suitable for the teaching works, so he started writing and written many poems. He got the awards, Golden Kite Award for picture book illustration, his famous creation. His books are The Leaves of Grass, Song of Myself, O Captain, My Captain, Song of the Open Road, Drum Taps, and the complete poems. His poems are written for the nature and for the materialistic world. He had written O Captain, My Captain as at the time of First World War. He was a very good person. In this poem, he personifies the water drops. Here, the theme personification is used in this poem. As we know, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा की बूंदों में केवल आवाज़ होती है, वह बोल नहीं सकती, लेकिन राइटर जो है उनको बोलने से पर्सनिफाई करता, पर्सनिफिकेशन का यूज़ करते हुए कहता है कि उनसे आवाज़ आती है, जब उनसे क्वेश्चन करता है तो उसको उनसे उत्तर मिलता है. Let's read the poem and know more about the poem. And who art thou, said I, the soft falling shower, which strength to tell gave me an answer as here translated. And who art thou? The poet describes that he asked a question to the raindrops, that who are you? Then she replied, and the writer wrote their reply in his poems. He describes that the poem answered his question. Let's see, and who art thou? कौन हो तुम? राइटर जो पोएट है हमारा वो कहता है कि कवि वर्षा की बूंदों से कि तुम कौन हो? Said I to the soft falling shower. मैंने जब उन धीरे धीरे बरसते हुए वर्षा की बूंदों से कहा कि तुम कौन हो, which strength to tell give me an answer. The writer said that it is very strange that she answered the question I had through to her. उसने कहा कि मेरे लिए विचित्र बात यह थी कि वर्षा की बूंदों ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया. जब मैंने उससे प्रश्न किया तो उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, और यही मेरे लिए विचित्र बात थी. इन लाइनों में देख रहे हैं आप कि पर्सनिफाई किया गया है लाइन को, क्योंकि वर्षा की बूंदें जवाब नहीं देंगी और जो पोएट है वह कहता है कि जवाब दे रही हैं. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven when visually formed altogether change and yet the same. The drops of water, the drops of rain replied when the poet questioned
They replies that they were self-formed things, as water vapors went to heavenward and become a cloud, and after that, after some time, it become to give the rain. पोएट है, जब वो वर्षा से प्रश्न करता है कि तुम कौन हो, तो वह कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं कौन हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ. एंड इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. बॉटमलेस सी मीन्स ऐसा समुद्र जिसकी बॉटम ही ना हो, मीन्स उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. अथाह सागर, उसने कहा कि मैं अथाह सागर वह पृथ्वी से लगातार स्पर्श करते हुए ऊपर उठती हूँ. मीन्स ऊपर से बारिश की बूंदें गिरती हैं, नीचे समहाउ किसी तरह से नदियों से होकर के, नालों से होकर के आगे गुजरते हुए पानी समुद्र तक जाता है, और समुद्र के जल से जब वाष्प बनती है तो फिर से वहाँ जाती है. मीन्स जहाँ से मैं आ रही हूँ वहीं पर फिर जाने के लिए मैं तत्पर हूँ. अपवर्ड टू हेवन वेंस विजुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम. कहती है कि मैं पृथ्वी का स्पर्श करती हूँ बूंद बनने के बाद, फिर उस अथाह सागर में जाती हूँ, वहाँ से उस वाष्प के रूप में आकाश में पहुँचती हूँ और धुंधले बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती हूँ. मेरा रूप पूर्ण रूप से बदल जाता है. फिर भी मैं क्या हूँ, मैं बारिश की बूंद हूँ, मैं जल की बूंद हूँ. भले ही मेरा रूप बदल कर बादल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूर्ण रूप से वही हूँ और आगे चल के फिर उसी रूप में परिवर्तित होने वाली हूँ. ऐसे वर्षा की बूंदें बताती हैं. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स टू ऑफ द गोल and all that in them without me were sheets only latent unburned. And also the raindrop describes the poet that without her nothing could be grow. If seed does not drop onto the earth, it becomes drought, and no grain will be able to grow and give the food. बारिश की बूंद कहती है कि मैं जब सूखी पड़ी हुई ज़मीन पर गिरती हूँ, क्योंकि पहले जब तक बारिश की बूंदें नहीं होती ज़मीन सूखी हुई होती है, वह कहती है कि जब मैं सूखी ज़मीन पर गिरती हूँ तो धूल में और मिट्टी के अंदर पड़े हुए वो जो बीज के छोटे छोटे कण हैं जो अभी तक प्रोग्रेस नहीं किए थे, अभी तक उन्नत नहीं किए थे, वह उगने के लिए तत्पर हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, और मैं उन्हें नहलाने के लिए जाती हूँ. And forever, by day and night, I give back life to mine own origin and make pure and beautify it. And doing so, I give him the life of my source. बारिश क्यों होती? बारिश वनों और पेड़ पौधों के कारण भी वर्षा होती है. तो वह कहती है कि जिनके कारण मेरा स्रोत है, मैं उनको सिंचित करने का प्रयास करती हूँ, मैं उनको बार बार नहलाती रहती हूँ, यानी बार बार बारिश होती रहती है और पेड़ पौधे बढ़ कर के बड़े हो जाते हैं और वह उनको जीवन देती है. ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उन्हीं से उसका भी अस्तित्व है, वह उन्हें सुंदर बनाने का प्रयास करती है. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, rigged on unrigged, daily with rubbers returns. And the poet also compares his poems with the drops of rain. वह कहता है कि जिस तरह की से वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ करके उसको जीवन प्रदान करती हैं, उसी तरह से वह अपने गीतों की तुलना करता है कि जब जो गीत जो कविताएं मैं लिखता हूँ वह मेरे सुनने वालों के पास तक जाती हैं, उनको प्रसन्नता प्रदान करती हैं, उनको उनके अंदर जीवन का संचार करती हैं, क्योंकि कविता का अस्तित्व किससे है? उसके पढ़ने वालों से है. जिस तरह से बूंद का अस्तित्व है पेड़ पौधों से, उसी तरह से कविता का अस्तित्व है उसके सुनने और पढ़ने वालों से. और जिस तरह से वर्षा की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं, समुद्र में मिलती हैं और घूम फिर कर फिर वापस वर्षा की बूंदों में ही बन जाती हैं,
उसी तरह से गीत भी अपना कार्य पूरा करके फिर से वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वह शुरू हुआ था। Dear students, read the lesson with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, still work, still practice. Thanks.